antifungal drugs, antibacterial drugs we are going to. So chloramphenicol is remaining here and antifungal drugs are remaining. We covered in today's lecture, and tomorrow we will start our. So tomorrow we will try to finish anti-tubercular drug and chloramphenicol and antifungal drugs. So am I audible? Are you able to see the screen also? So good evening to all. Here today we are going to start our. So first of all, chloramphenicol is again a one of the broad spectrum antibiotic. यहाँ पे याद रखो कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या, कि ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्टिव है. नैरो स्पेक्ट्रम मतलब क्या, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर. जैसे पेनिसिलिन से, पेनिसिलिन आर दे आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बिकॉज दे आर इफेक्टिव ओनली इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. Okay, so but tetracycline tetracyclines, aminoglycosides, then chloramphenicol, so these are the wide spectrum or broad spectrum antibiotic. ठीक है, मीन्स ये जो है क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, ये क्या होते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्टिव होते हैं. सो दे विल एक्ट अगेंस्ट डिफरेंट वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. So narrow spectrum means if antibiotic is able to if antibiotic is effective in case of particular organism, for example gram negative or gram positive, then that is a narrow spectrum antibiotic. But this chloramphenicol is a broad spectrum antibiotic obtained from Streptomyces venizoli. याद रखो, सोर्स याद रखो, Streptomyces venizoli. Chloramphenicol is obtained from Streptomyces venizoli. Now commercially it is totally synthetic derived. Now it is obtained as a obtained by synthetic process. इट्स वेरी सिंपल. इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है और आजकल ये सब कमर्शियली जितने भी क्लोराम्फेनिकॉल बनता है आजकल एपीआई, वो सब सिंथेटिक है. माइक्रोबियल सोर्स अगर पूछेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली, क्योंकि इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली. नाउ इट इज कमर्शियली available, whatever commercially available chloramphenicol is there, so it is totally synthetic in nature. So it has a, it, as I told you, it is a broad spectrum antibiotic and the spectrum of activity of chloramphenicol is like that of a tetracyclines. जो टेट्रासाइक्लिन्स का स्पेक्ट्रम होता है उसकी ही जैसा स्पेक्ट्रम है इसका क्लोराम्फेनिकॉल का. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसका. देखो, क्लोराम्फेनिकॉल इज अगेन एंटीबायोटिक व्हिच विल इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ योर बैक्टीरिया. बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस अगेन ये इनहिबिट करेगा. So chloramphenicol gets readily penetrated into bacterial cell wall and acts by interfering the synthesis of bacterial protein by binding with the 50s ribosome. So यहाँ पे ये 50s राइबोसोम जो राइबोसोमल पार्ट होता है 80s राइबोसोम. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि 80s राइबोसोम होता है, मतलब 80s 30s पार्ट एक होता है और 50s पार्ट एक होता है. तो 30s पार्ट को कौन बाइंड करता है और 50s पार्ट को कौन बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है, आपको याद रखना है. जैसे 30s राइबोसोम को कौन बाइंड करता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. सो हियर क्लोराम्फेनिकॉल will bind with the 50s ribosomal subunit of your ribosomes of bacteria, then it will inhibit the protein synthesis. Okay, so remember mechanism of action of chloramphenicol. It is a broad spectrum obtained by Streptomyces venizoli and it will readily get penetrated or readily get entry into bacterial cell wall and acts by intervening the protein synthesis. Okay, by binding with the 50s ribosomal subunit of ribosomal subunit of, then it will also interfere with the transfer. It will also interfere with the, or it will also decrease the transfer of elongating peptide chain. जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे एमआरएनए में कोडिंग जो है, एमआरएनए पे जैसा जो भी कोड है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे अमीनो एसिड्स ऐड होते जाते हैं टीआरएनए के ऊपर, है ना. टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड लेके आएगा वहां पे. तो वो जो कोडिंग होता है और उसके बाद में कोडिंग के एज कोडिंग प्रोसीड्स, रीडिंग ऑफ कोडिंग प्रोसीड्स, तो complementary amino acid will be added, so there will be elongation of peptide chain. This chloramphenicol will interfere with that elongating chain also. So that is the mechanism of action. Again I will read. Chloramphenicol gets readily penetrated into bacterial cell wall and acts by inhibiting the protein synthesis by binding with the 50s ribosomal subunit. It also interfere with the transfer of elongating peptide chain to the newly attached amino acid tRNA complex. Then at a higher dose, it can inhibit mammalian mitochondrial protein also. Means it, देखो बहुत सारे एंटीबायोटिक जो है ना वो दे आर स्पेसिफिक टू बैक्टीरिया. They will inhibit the cell wall synthesis of bacteria only, not humans.
because there are certain difference in the cells of prokaryotes and eukaryotes. But this chloramphenicol in higher doses can also inhibit the mammalian mitochondrial protein synthesis. मतलब क्या कि ये आपका होस्ट जो है, आप होस्ट कौन है? आप है। इन्फेक्शन किसको हुआ है? आपको हुआ है, तो आप होस्ट है, ठीक है। तो आइडियली एंटीबायोटिक ने क्या करना चाहिए कि बैक्टीरिया को डैमेज करना चाहिए, ना कि आपने सेल को। सो दिस chloramphenicol in higher doses, no doubt it will inhibit the protein synthesis of your bacteria, but also in higher doses it has the ability to inhibit the mammalian mitochondrial protein synthesis. मतलब आपका जो होस्ट सेल है, आपका जो सेल है, उसको भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेगा. सो एंड दैट्स व्हाई दिस chloramphenicol has a adverse effect, particularly bone marrow suppression. So bone marrow suppression means it will inhibit the protein synthesis in the bone marrow cells, and it will prevent the formation of cells over there, RBC and WBC, etc., etc. So aplastic anemia will be the adverse effect like that. Okay, लेकिन adverse effect क्यों होता है ये मालूम होना चाहिए. क्यों? Because chloramphenicol in higher doses can inhibit the mammalian mitochondrial protein synthesis. So that's why there is a adverse effect of that bone marrow suppression and aplastic anemia. Again, this chloramphenicol will develop a resistance to the bacteria slowly. Okay, and that resistance is because of decreased the permeability of chloramphenicol into the bacterial cell wall. यहाँ पे यह है, it get readily penetrated into bacterial cell wall, कि readily bacterial cell wall के अंदर जाएगा वो, और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करेगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो बहुत सारे बैक्टीरिया को उनको डेवलप होता है रेजिस्टेंस. कैसे होता है? जो परमेबिलिटी है उसका क्लोराम्फेनिकोल का, जो पेनिट्रेट हो रहा है inside the cell of bacteria, जो amount of drug that is penetrating to the cell wall of bacteria, that is decreased in some bacteria, and that is the mechanism behind the resistance. So resistance to chloramphenicol develops slowly due to the decreased permeability to the bacterial cell, and also it will show cross resistance to tetracyclines. मतलब क्या कि यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंट करता है, so if any organism is particularly resistant to the tetracyclines, that means same organism can show cross resistance to the your chloramphenicol. टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, मतलब टेट्रासाइक्लिन देंगे आप टेट्रासाइक्लिस, तो उसका इन्फेक्शन क्लियर नहीं होगा, और उसके बाद में आपने क्लोराम्फेनिकल दिया तो उसकी वजह उसके कारण भी नहीं होगा, क्योंकि tetracyclines resistant bacteria will show cross resistance to the chloramphenicol. These are the important points from your mechanism of action: absorption, distribution, metabolism, elimination. Unlike tetracyclines, so they are completely absorbed from your GIT. So this chloramphenicol is completely absorbed from GIT. Unlike tetracycline, क्यों tetracycline क्योंकि tetracycline they was not completely absorbed from the GIT, because they used to get complexes with your calcium, sodium, calcium, magnesium, and iron, and that complexes are relatively insoluble in the वाटर एंड लेस परमेबल, तो उसकी वजह से उसका परमिएशन नहीं होता, तो कंप्लीट एब्सॉर्प्शन नहीं होता टेट्रासाइक्लिन का. लेकिन यहाँ पे क्लोराम्फेनिकोल का कंप्लीट होता है. सो ब्लड लेवल आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज हायर देन आईवी बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इन द गट. जो क्लोराम्फेनिकोल होता है, इट इज सप्लाइडेड एज अ क्लोराम्फेनिकोल पाल्मिटेट. ठीक है, तो क्लोराम्फेनिकोल पाल्मिटेट का सॉल्ट होता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा आपका यहाँ पे जीआईटी में. तो यहाँ पे ओरल लेवल जो है उसका वो ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू आईवी. डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज increases the absorption. 60% protein bound concentration of drug found in CSF, and it can cross the BBB and placental barrier. क्लोराम्फेनिकोल का जो पार्टिकल साइज है वो मैटर करता है, उसका अगर डिक्रीज करेंगे तो एब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा. Okay, so decrease in the particle size of chloramphenicol will increase the absorption up to 60%. Increase the absorption. Then the drug is 60% bound to the plasma protein. Concentration of drug found in bile, CSF. Okay, bile में भी जाता है, cerebrospinal fluid में भी मिल जाएगा chloramphenicol. उसके बाद में it can cross the blood-brain barrier and placental barrier. Now chloramphenicol palmitate जो salt होता है chloramphenicol palmitate, it is a ester with palmitic acid. Chloramphenicol ester with palmitic acid. So esterification of chloramphenicol with palmitic acid should give you chloramphenicol palmitate, and which is a prodrug. So it is a prodrug. It is hydrolyzed in the body. Okay, which is inactive in vivo and gets hydrolyzed inside the pancreatic lipase. Okay, gets hydrolyzed in the stomach and intestine in presence of pancreatic lipase.
and then it is active now. Okay, it is activated by hepatic, it is inactivated, it is metabolized by hepatic conjugation to glucuronide and it is excreted in the यूरिन. ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है? फिर सेकंड रिएक्शन जो होता है ग्लूकोयूरिनाइड कॉन्जुगेशन, उससे होता है उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में. ठीक है, और बाद में ये एक्सक्रीट होता है यूरिन में. सो व्हाट आर द एडवर्स रिएक्शन टू द दिस क्लोराम्फेनिकोल? सो एडवर्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवर्स रिएक्शन, तो इसके ऊपर फोकस करो आप. तो एडवर्स रिएक्शंस ऑफ क्लोराम्फेनिकोल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट एलर्जी व्हिच इज कॉमन, लाइक कॉमन स्किन रिएक्शंस, drug fever, angioneurotic edema, exfoliative dermatitis and atrophic glossitis. थोड़ा सा लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू अदर एंटीबायोटिक, बट है उसको कि स्किन रैश होंगे, ड्रग फीवर, ड्रग लेने के बाद आपको थोड़ा सा फीवर आ जाएगा. ठीक है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस मतलब आपके स्किन के ऊपर डर्मेटाइटिस हो जाएगा. ग्लोसाइटिस मतलब आपके गले में भी इन्फेक्शन हो जाएगा. मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस क्लोराम्फेनिकोल, सबसे मेन एडवर्स इफेक्ट कौन सा है उसका? बोन मैरो टॉक्सिटी. बोन मैरो टॉक्सिटी क्यों है? मैंने बोला है आपको, बिकॉज एज क्लोराम्फेनिकोल इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इन द बैक्टीरिया, so it will combine with the 50s ribosomes chromosomal unit and will prevent the protein synthesis. But in higher doses it can also inhibit the protein synthesis of your mammalian cell, मतलब host cell, मतलब आपका सेल का भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेगा इन हायर डोसेस. एंड सबसे पहले उसका शिकार कौन बनेगा? आपका बोन मैरो. ठीक है, सो बोन मैरो में जो सेल्स होते हैं, बिकॉज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एंड दे आर वल्नरेबल. एंटी कैंसर ड्रग में भी वैसे होता है. जो एंटी कैंसर ड्रग है वो सबसे पहले किसको अफेक्ट करेंगे? बोन मैरो सेल्स को. सो बोन मैरो टॉक्सिटी, so in higher doses chloramphenicol inhibit the protein synthesis of bacterial as well as mammalian cells and result in the bone marrow toxicity. Aplastic anemia, it is a idiosyncratic reaction of clombinic. So aplastic anemia, remember the adverse. Then agranulocytosis, thrombocytopenia. So these are the adverse effect related to bone marrow toxicity. Aplastic anemia, then agranulocytosis and thrombocytopenia. Another major adverse effect of this cloramphenicol, बहुत ही ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रे बेबी सिंड्रोम. ग्रे बेबी सिंड्रोम मतलब एज द नेम इंडिकेट ग्रे बेबी सिंड्रोम. तो ये ग्रे बेबी सिंड्रोम किसमें होगा? ये होगा बेबीज में. ठीक है, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनमें होगा, नियोनेट्स. तो बड़े में नहीं होगा, ये बड़े जो मैच्योर और जो पेशेंट्स है मैच्योर पेशेंट उसमें नहीं होगा. तो ये सिर्फ होता है आपका बेबीज में. सो इट इज अ फेटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लोराम्फेनिकोल विद हाई मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, इसमें क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट हाई है. अगर ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया तो बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, डेथ हो जाती है. आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ क्लोराम्फेनिकोल इनिशियल सिम्टम्स विल स्टार्ट लाइक vomiting, lethargy, anorexia, then abdominal distension, irregular respiration develops. इवन सिंगल डोज, जो सिंगल डोज है फर्स्ट डोज जो दिया आपने, तो उसमें स्टार्ट होता है सिम्टम्स. कौन सा? वोमिटिंग, लिथार्जी, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन. किसमें? बच्चों में. क्यों होता है ये देखते हैं. आफ्टर 24 आवर्स कंडीशन गेट्स वर्सन, मतलब 24 घंटे के बाद में 24 घंटे के बाद ज्यादा होता है खराब, कंडीशन जो है वर्स्ट होता है, leading to hypothermia, flaccidity, peripheral vascular collapse, then cyanosis, shock and finally death. Okay, and this is because of, ये क्यों होता है? those patient or those children which are deficient in the enzyme known as a metabolizing enzyme, that is a glucuronide conjugation. जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका, ग्लूकोयूरिनाइड कॉन्जुगेशन होता है उसका और बाद में वो एक्सेप्ट हो जाता है. कौन? क्लोराम्फेनिकोल. सो फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म. So those patient or those babies which are deficient in that enzyme responsible for the conjugation of cloramphenicol in the liver. So in those patients this happens, great baby syndrome happens. Then again immaturity of renal tubules in the infants leading to impairment of excretion in the free form. मतलब क्या होता है? जो बेबीज होते हैं उनका कैसा होता है? देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सब कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं होता, तो उनका किडनी उतना प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, उनका लिवर उतना डेवलप नहीं होता. तो बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई बच्चे में अगर ये उसका जो मेटाबलाइज करने का एंजाइम्स है वो अगर नहीं है उसमें, तो उसमें क्या हो जाएगा? ग्रे बेबी सिंड्रोम. सो दोज बेबीज which are deficient in the conjugation of cloramphenicol in the liver. तो कॉन्जुगेटिंग एंजाइम जो होते हैं वो अगर डेफिशिएंट है उस बेबीज में, तो उनमें ये ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा. और immaturity of the renal tubules in the infants leading to impairment of excretion in the free form. देखो, जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जैसे आप मैं हूँ, ठीक है, आपके जो है किडनीज में ट्यूबल्स जो है
वो प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं, उनका कैपेसिटी भी अच्छा है, ठीक है, जो नॉर्मल किडनी है अगर तो उसमें क्या होता है कि फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग विल बी एक्सक्रीटेड अप टू सम एक्सटेंट, कि फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग आल्सो विल बी एक्सक्रीटेड। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें ये उतना डेवलप्ड नहीं रहता ट्यूबल्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्यूबल्स उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, उसके कारण ये सब होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। सो याद रखो आप ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज अगेन अनदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ योर क्लोराम्फेनिकोल। तो बोन मैरो टॉक्सिसिटी लाइक aplastic anemia, then agranulocytosis and thrombocytopenia, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ये दो मेजर एडवर्स इफेक्ट है क्लोराम्फेनिकोल। देन CNS टॉक्सिसिटी लाइक हेडेक, देन पेरिफेरल न्यूराइटिस, then internal ophthalmoplegia, then mental confusion, depression, optic neuritis, and also can damage the cochlear nerve function. So these are the CNS adverse effects, but mostly these two are very important: bone marrow toxicity and Gray Baby syndrome. Then miscellaneous adverse reaction like typhoid shock syndrome, like reactions. This happens in patient with typhoid. जिसको टाइफाइड हुआ है उसमें क्या होता है कि एक्चुअली दिस क्लोराम्फेनिकोल वाज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन द टाइफाइड अंटिल 1930। 1930 तक ये क्लोराम्फेनिकोल वाज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर। तो बहुत सारे लोगों में टाइफाइड जिसको होता है उसमें क्लोराम्फेनिकोल देते थे। तो समटाइम्स इन फ्यू पेशेंट्स टाइफाइड shock syndrome used to develop after treatment of this क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल का ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो टाइफाइड शॉक लाइक सिम्टम उसमें डेवलप हो जाता है। Then now therapeutic uses. So these are the adverse effect. Now therapeutic uses. So therapeutic uses are similar to your tetracyclines. It should be restricted only for treatment of Salmonella typhi and paratyphi. यहाँ पे लिखा है. So it is a reserved drug. It is a restricted drug to used in the infection of Salmonella typhi and paratyphi. टाइफाइड का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसमें ही यूज करना है, इसको रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसको रेजिस्टेंट, अगर इसको भी डेवलपमेंट हो गया रेजिस्टेंट का, रेजिस्टेंट डेवलप हो गया तो कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे? आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है। तो हर एक बैक्टीरिया को, अगर हर एक एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट डेवलप हो गया तो फिर कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे? एंटीबायोटिक ही नहीं बचेगा ना, क्योंकि पिछले पिछले तकरीबन 50 ईयर्स में कोई नया एंटीबायोटिक नहीं आया हमारा। So, जो भी अभी जो नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, दे आर नॉट अ न्यू मॉलिक्यूल्स, दे आर जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ योर प्रीवियस लीड कंपाउंड। जो नए मॉलिक्यूल जो दिख रहे हैं मार्केट में वो नए नहीं है, वो पुराने ही है, बस उनको मॉडिफाई किया है, लीड मॉलिक्यूल को थोड़ा बहुत चेंज करके बनाया है। तो अगर पेरेंट मॉलिक्यूल को अगर रेजिस्टेंट है तो इसको भी हो जाएगा। दैट्स व्हाई सो इट इज अ रिजर्व ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी। देन इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, इट वाज अ ड्रग ऑफ चॉइस until 1980. It was a drug of choice until 1980 in the treatment of typhoid fever, but now it is replaced by ceftriaxone. It is replaced by ceftriaxone. इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कोई, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर। सो उसमें अगर क्लोराम्फेनिकोल है ऑप्शन में और सेफ्ट्राक्सोन नहीं है तो उसका आंसर क्लोराम्फेनिकोल है। अगर क्लोराम्फेनिकोल नहीं है, सेफ्ट्राक्सोन है, तो उसका आंसर सेफ्ट्राक्सोन है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्लोराम्फेनिकोल इज आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन द typhoid fever and ceftriaxone is also drug of choice in the typhoid fever, but now ceftriaxone is used. It was previously used, cloramphenicol was previously used. Then other drug used in typhoid fever like ciprofloxacin, cotrimazole, ampicillin, piompicillin and first generation and third generation cephalosporin। ठीक है, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन भी यूज करते हैं टाइफाइड फीवर में। सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये सिप्रोफ्लॉक्सिन मतलब डीएनए काइनेज इनहिबिटर। कोट्रामेजोल, देन एम्पिसिलिन, पियोम्पिसिलिन, ठीक है। देन एचबी, इट इज आल्सो यूज्ड इन द इन्फेक्शन ऑफ एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस। अगर एच इन्फ्लुएंजा का मेनिंजाइटिस हो गया आपका, मेनिंजियल में इन्फेक्शन, तो ड्रग कौन सा यूज करेंगे? टाइफाइड। रिकेशियल इन्फेक्शन, एरोबिक इन्फेक्शन, प्लेग, ब्रुसेलोसिस, क्रोनिक डायरिया, सॉरी क्रोनिक ओटोरिया। ओटोरिया मतलब कान में से आपके ये बहना, कान में से आपका सिक्रेशन होना, कान में से आपका होता है, कान में से कान फूटने के बाद जो बाहर जो गंदा गंदा आता है वो क्रोनिक ओटोरिया। देन यूटीआई, ओक्यूलर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ओक्यूलर इन्फेक्शन। सो यूज याद रखो कि टाइफाइड फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस है। विल जस्ट सी द समरी ऑफ antibiotic which will inhibit the protein synthesis. So major class of protein synthesis inhibiting antibacterial drugs, क्लोराम्फेनिकोल, मैक्रोलाइड्स एंड लिंकोमाइसिन, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेंगे। अमीनोग्लाइकोसाइड्स भी करते हैं और टेट्रासाइक्लिन्स भी करते हैं, ठीक है। तो देखो क्लोराम्फेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, मैक्रोलाइड्स मतलब जैसे आपका इरिथ्रोमाइसिन, आइजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। लिंकोसमाइड भी आपने देखा है, ये सब देखा है।
So chloramphenicol, macrolides, and lincosamide, they will bind to 50s ribosomal subunit of bacterial ribosome and then prevent the synthesis of protein, prevent the peptide bond formation and stop the protein synthesis. Okay, so देखो यहाँ पे क्या है, ये मेजर जो है ना, ये देखो नीचे जो है ये दिस इज mRNA, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 3 डॉट लिखा है, ये दिस इज नथिंग बट द कोडॉन, it is a one codon, ठीक है, it will code for one amino acid. So this is mRNA and this is rRNA, sorry this is a tRNA, ट्रांसफर RNA। ये क्या करेगा, अमीनो एसिड लेके आएगा, कहाँ से, अमीनो एसिड पूल में से, जो बॉडी का होता है अमीनो एसिड पूल, वहां से अमीनो एसिड लेके आएगा। कैसा अमीनो एसिड लेके आएगा, इसके ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, यहाँ पे जो कोड है अमीनो एसिड का, उसके अकॉर्डिंगली ये अमीनो एसिड लेके यहाँ पे लाएगा। तो यहाँ पे अमीनो एसिड का पेप्टाइड चेन बनते जाएगा, यहाँ पे देखो अमीनो एसिड का पेप्टाइड, ठीक है, ये देखो ये अमीनो एसिड ज्वाइन हो गई पेप्टाइड, सो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। सो दिस क्लोराम्फेनिकॉल, मैक्रोलाइड एंड लिंकोसामाइड, दे विल बाइंड टू 50s राइबोसोम। ये बड़ा वाला जो है ना, ये 50s राइबोसोम है, और नीचे वाला जो है 30s राइबोसोम। मतलब ये राइबोसोम होता है, उसका सब यूनिट्स होता है 30s एंड 50s, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है, ठीक है। So they will stop the protein synthesis. Okay. Now aminoglycoside, they will bind to 30s ribosome. देखो यहाँ पे बाइंड करेंगे 30s राइबोसोम, दे विल बाइंड टू 30s राइबोसोमल सबयूनिट ऑफ योर बैक्टीरियल राइबोसोम एंड इंपेयर द प्रूफ रीडिंग रिजल्टिंग इनटू प्रोडक्शन ऑफ फॉल्टी प्रोटीन। देखा वो क्या करेंगे, अमीनो ग्लाइकोसाइड अपने देखा है उनका मैकेनिज्म। सो दे विल कॉज मिस रीडिंग ऑफ अमीनो एसिड कोडॉन, दे विल मिस रीड द दिस mRNA के ऊपर जो कोड्स है उसको मिस रीड करेंगे, मतलब गलती करेंगे वो रीड करने में। सो मिसरीड करेंगे तो फॉल्टी अमीनो एसिड आएगा, फॉल्टी अमीनो एसिड आएगा तो फॉल्टी प्रोटीन बनेगा, फॉल्टी प्रोटीन बनेगा मतलब उसका वो नॉन फंक्शनल रहेगा, और फॉल्टी प्रोटीन बनने के कारण क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। सो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स विल बाइंड टू 30s राइबोसोम, दे विल इंपेयर द प्रूफ रीडिंग and or misreading resulting into production of faulty proteins and bacteria will die. Then tetracyclines, they will also bind to 30s ribosomal subunit, they block by binding tRNA। यहाँ पे tRNA जो आ रहा है उसको ब्लॉक कर देंगे, वो नहीं थे। So thereby they inhibit the protein synthesis. So this is a major class of drug, those are involved in the protein synthesis, those inhibit the protein synthesis of bacteria. Now we'll see the antifungal drugs. As like a bacteria, virus, rickettsia, then parasites. So fungus is also there. Okay, fungus is also there, it can also infect the humans. Okay, so there are different infection of fungus. So normally the study of fungus is known as mycology, and the infection caused by fungus is known as a they are known as a mycosis. Okay, so infection of fungus is nothing but the mycosis. Recently you might have heard the term mucormycosis, अभी बहुत ही चर्चा में था अभी म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोर टाइप का एक फंगस होता है म्यूकोरमाइकोसिस। सो म्यूकोर का फंगल इन्फेक्शन जिसको होगा उसको बोलेंगे म्यूकोरमाइकोसिस, और उसको आजकल ब्लैक फंगस बोलते हैं उसको। सो म्यूकोरमाइकोसिस, जैसे माइकोसिस इज नथिंग बट द इन्फेक्शन ऑफ फंगस। ओके, सो फंगल इन्फेक्शन कैन बी आइदर सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस और सिस्टेमिक इन्फेक्शन। इन केस ऑफ सुपरफिशियल इन्फेक्शन, देखो सुपरफिशियल इन्फेक्शन अगर होगा फंगस का तो वो किसकी वजह से होगा, एक तो रिंगवर्म की वजह से होगा, कैंडिया अल्बिकम की वजह से होगा, टायरियसिस वर्सिकुलर इसकी वजह से होगा, या फिर टिनिया नाइग्रा। तो these species of fungus will cause superficial infection. Okay, then subcutaneous infection will be caused by, for example, subcutaneous infection also will be caused by fungus. Example of that disease is Madura foot. Then systemic infection like histoplasmosis, then blastomycosis, coccidioidomycosis, coccidioidomycosis. See, so these are the fungal infection. So it might be either superficial, like superficial infection of like infection to the hair, infection to the nail, skin. अगर हेयर में फंगस का इन्फेक्शन हो गया तो आपको सब डैंड्रफ हो जाएगा, ठीक है। नेल में अगर हो गया फंगल का इन्फेक्शन तो आपका नेल जो है वो पूरा ग्रीन कलर का हो जाएगा या फिर ब्लैक कलर का हो जाएगा। स्किन के ऊपर भी इन्फेक्शन करता है। क्यूटेनियस इन्फेक्शन लाइक हेयर फॉलिकल, नेल एंड स्किन अगेन। सब क्यूटेनियस इन्फेक्शन लाइक बिलो द स्किन, उसको हो गया सुपरफिशियल इन्फेक्शन, और दे आर नोन एज सुपरफिशियल क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस माइकोसिस। देन डीप माइकोसिस मतलब सिस्टमिक माइकोसिस, डीप मतलब डीप इन द बॉडी, इन केस ऑफ ब्रेन। सो फंगल मेनिंजाइटिस, ओके, ब्रेन फंगल मेनिंजाइटिस। इन केस ऑफ लंग अगेन म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन जो है ना वो आपके थ्रोट में से पूरा लंग में जाता है और लंग को खराब कर देता है, म्यूकोरमाइकोसिस।
उसके बारे में बोलता हूँ आपको, म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। सो ड्रग ऑफ चॉइस है एम्फोटेरिसिन बी। म्यूकोरमाइकोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? एम्फोटेरिसिन बी। आपने देखा होगा इस कोरोना के क्राइसिस में महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा हो गया था। तो लंग्स में भी होगा तो उसको डीप माइकोसिस, हार्ट में भी हो सकता है, लिवर में को इन्फेक्ट कर सकता है आपको, फंगस, स्प्लीन को, किडनी को। ये म्यूकोरमाइकोसिस का क्यों आया था मैं बोलता हूँ आपको बाद में। एंटी फंगल ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, सबका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट वन इज एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, इन दैट आल्सो योर डिफरेंट सब टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज अ पॉलीन एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। कि पॉलीन एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल क्या है? एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन एंड हैमाइसिन। रिमेंबर, पॉलीन एंटी फंगल एंटीबायोटिक। देन दूसरा क्लास कौन सा है? इकोनोकैंडिडियंस, ठीक है, इकोनोकैंडिडियंस। उसका एग्जांपल है कैस्पोफंगिन, देन माइकाफंगिन एंड अनिडुला फंगिन। कैप्सोफंगिन, माइकाफंगिन एंड अनिडुला फंगिन। सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोनोकैंडियंस। इकोनोकैंडियंस याद रखो आप, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है लेकिन याद करना पड़ेगा। इशिनोकैंडियंस ऐसा भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, इशिनोकैंडियंस। सो कैस्पोफंगिन, मीटाफंगिन एंड अनाडिलोफंगिन। इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन आता नहीं है जैसे एंटीफंगल ड्रग के ऊपर, लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। अभी एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ थर्ड क्लास ऑफ एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स, heterocyclic benzofuran derivative like griseofulvin is a heterocyclic benzofuran derivative. Antifungal antibiotic like Pauline antifungal antibiotic, then Echinocandidin antibiotics, then heterocyclic benzofuran. Now second one is anti-metabolite. Anti-metabolite और जो एंटी कैंसर ड्रग होते हैं उसका ही एक एग्जांपल, जैसे उसी टाइप का एग्जांपल है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन इज एंटी मेटाबोलाइट टू द फंगल सेल, सो फ्लूसाइटोसिन। Then next one is azole antifungals. So they are very much famous as a antifungal drug. azole antifungals उसमें भी दो क्लास होता है। एक तो इमिडाजोल होता है। इमिडाजोल का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, 1,3 नाइट्रोजन इन द 5 मेंबर रिंग। सो इमिडाजोल, इमिडाजोल डेरिवेटिव कौन से है? ये सब है। तो उसमें भी दो टाइप है। टॉपिकली कौन से यूज करते हैं? इमिडाजोल। सो कोट्राइमेजोल, इकोनेजोल, माइकोनेजोल एंड ऑक्सीकोनेजोल। कोट्राइमेजोल, इकोनेजोल, माइकोनेजोल एंड ऑक्सीकोनेजोल। सो दीज आर द टॉपिकल्स एंड सिस्टेमिकली यूज्ड इमिडाजोल्स लाइक कीटोकोनाजोल। सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए देंगे, ये टॉपिकली यूज करते हैं स्किन के ऊपर या फिर। देन नेक्स्ट वन इज अ ट्रायाजोल डेरिवेटिव। ट्रायाजोल मतलब, ट्राया मतलब 3, एजोल मतलब नाइट्रोजन। तो 3 नाइट्रोजन जहाँ पे 5 मेंबर रिंग में होंगे उसके डेरिवेटिव तो एजोल ही होगी। तो फॉर एग्जांपल फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल, ठीक है। फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल, तो ये सब है ट्रायाजोल डेरिवेटिव। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट क्लास इज अल्कलामाइन लाइक टर्बिनाफिन is alkalamine. Then topical agent like tolanafate, andecyclinic acid, then benzoic acid, cyclopyroxolamine। तो ये ड्रग नए ड्रग दे है एक्चुअली, इसमें ये आता भी नहीं क्लास, यहाँ तक याद रखो, ठीक है। Then quinaclor is there, sodium thiosulfate is there, butanafine is there. So these are the topical agent. So classification याद रखो। तो मोस्टली कितने क्लासेस है? एक तो एंटीबायोटिक, एंटी फंगल एंटीबायोटिक, दो एंटी मेटाबोलाइट में फ्लूसाइटोसिन आएगा। देन एजोल एंटीबायोटिक्स में ये सब आते हैं। देन अल्कलामाइन, और ये क्लास याद नहीं रखा तो पिछड़ेगा, लेकिन ये कम से कम 4 याद रखो। सो नाउ विल सी द ड्रग इंडिविजुअल ड्रग्स। सो एंटी फंगल एजेंट क्लासिफिकेशन अगेन आई विल क्लासिफाई। So topically used antifungal agents like nystatin and hamycin. Systemically used antifungal antibiotics like griseofulvin, amphotericin B. Out of this amphotericin B is a polyene. Antimetabolites like flucytosine. Azole derivative like imidazoles, cotrimazole, ketoconazole, miconazole. Triazole derivative like itraconazole, fluconazole, voriconazole, etc. Then miscellaneous like terbinafine. Okay, so we'll see individual drug. ये इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल ड्रग देखते हैं। सो निस्टैटिन, पहला है आपका निस्टैटिन। निस्टैटिन में क्या है? इट इज अ पॉलीन डेरिवेटिव, इट इज अ पॉलीन डेरिवेटिव। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नूरसेई, स्ट्रेप्टोमाइसिस नूरसेई। सो इट इज अ पॉलीन एंटीबायोटिक, पॉलीन एंटीफंगल एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नूरसेई। एक्टिव अगेंस्ट द कैंडिडिया, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइकोसिस, देन ट्राइकोपाइटॉन, माइक्रोस्पोरम ऑडिनोई, microsporum species. So these are the names of your fungus: histoplasma, Candida albicans, blastomycosis, Mycophyton, Dermatophyton. ये सब क्या है? नेम है के फंगस के। Now mechanism of action of this nystatin, how it will act.
as an antifungal. So this nystatin will combine with the cell membrane of fungus and creates a pores or channels in the cell membrane, increasing the membrane permeability. It may be fungistatic और fungicidal. अभी देखो ये nystatin क्या करेगा, ये कंबाइन होगा सेल मेम्ब्रेन में फंगस के और उसको क्या करेगा, वहां पे कर देगा, वहां पे छेद कर देगा सेल मेम्ब्रेन को. तो ऑब्वियसली अगर छेद हो गया तो जो सेल का इनसाइड कंटेंट है, सेल का कंटेंट है साइटोप्लाज्म में, वो कहाँ आएगा, वो बाहर आएगा. तो ऑब्वियसली फंगल सेल क्या होगा, मर जाएगा. सो इट कंबाइंस विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगस एंड क्रिएट्स अ पोर्स or channels, thus increasing the membrane permeability. Now this nystatin may be either fungicidal or fungistatic. Cidal means kill करेगा फंगस को, static means उसका growth inhibit करेगा. It is used in the treatment of localized vaginal, local, skin और gut candidiasis. तो इसका यूज क्या है, कैंडिडियासिस. कैंडिडिया अल्बिकन्स का इन्फेक्शन हो गया कहाँ पे, लोकलाइज्ड वेजिनल, लोकल, स्किन एंड गट जीआईटी में. कैंडिडियासिस जो हो गया तो उसको यूज करेंगे निस्टेट. Monolia infection of vagina. This is a pollen. Now next one is a pimarsin. Pimarsin, it is obtained from Streptomyces notalensis. Pimarsin is obtained from Streptomyces notalensis and used to treat bronchopulmonary aspergillosis. Aspergillus जो फंगस होता है उसका इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलेंगे aspergillosis. Then candidiasis, ophthalmic keratitis. ये तीन कंडीशन में उसको यूज करते हैं. इसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा. पिमारसिन. Then next one is a hamycin. Hamycin, it is again a pollen antibiotic obtained from Streptomyces pimperiana. Streptomyces pimperiana. It is used in the dermatitis, blastomycosis and like nystatin. ये इसको भी याद नहीं रखा तो भी चलेगा. अभी मेन क्या है आपका, पहला जो था वो, और अभी जो आपको ग्रिजियोफुल्विन है, ये एक मेन है आपका. ग्रिजियोफुल्विन इज इम्पोर्टेंट अगेन. So it was isolated from Penicillium griseopulvum. याद रखो इसका source, Penicillium griseopulvum. It was a first compound effective in the superficial dermatophytes. Superficial dermatophytes, ringworm. So it is only effective orally. ये topically नहीं लगाते हैं इसका, तो इसको effective कब है, इस orally effective. So it is a only orally effective drug for dermatophytes. So it's isolated from Penicillium griseopulvum. It is effective against the Trichophyton, then Microsporum epidermophyton, then not effective against the Candida albicans. Again, this drug is a fungistatic, not a fungicidal. Then MAO, mechanism of action. It has a cytotoxic property like colchicine. क्या करेगा, सेल को टॉक्सिसिटी कर रहा है, ठीक है, लाइक कोल्चिसिन, एंड डैमेजेस द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन एंड प्रिवेंट्स द माइटोसिस. माइटोसिस एंड म्यूसिस दो प्रोसेस है सेल डिवीजन के, तो वहां पे क्या करेगा वो, माइटोसिस को प्रिवेंट करेगा. इट विल डैमेज द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन एंड प्रिवेंट द माइटोसिस. इट हैज अ वीक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी अगेन. ओके, इसको एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी भी है, वीक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी है, एंड मेनली एक्ट्स ऑन अ ग्रोइंग फंगल सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग फंगल सेल. जो एक्टिवली डिवाइडिंग फंगल सेल है या फिर ग्रोइंग फंगल सेल है उसके ऊपर ही एक्ट करता है, उसको बोलते हैं ग्रेजियोफुल्विन. नाउ हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर डिसीज्ड स्किन देन नॉर्मल स्किन. मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन है वहां पे उसका एक्टिविटी ज्यादा होगा, जहाँ पे इन्फेक्शन है उसका एक्टिविटी ज्यादा होगा देन नॉर्मल स्किन की बजाय जहाँ पे इन्फेक्शन है उसका एक्टिविटी ज्यादा होगा. The drug is deposited in the keratin precursor cell and gets incorporated into keratin and makes it resistant to fungal invasion. जो भी केराटिन से, केराटिन कहाँ पे होता है आपका, केराटिन होता है आपका नेल्स में और आपका ईयर्स में, ठीक है. वहाँ पे वहाँ पे वो ड्रग ये होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वहाँ पे रेजिस्टेंट बनाता है फंगल इन्फेक्शन, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा. Absorption, distribution, metabolism, elimination. Oral absorption depends on the particle size again. So decrease in the particle size will increase the absorption of this griseopulvin. We have seen this in the size reduction. Smaller the particle size would be the absorption. Again, fatty meal or fatty food will increase the absorption of this griseopulvin, and this is largely eliminated unchanged. क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एलिमिनेटेड एज अनचेंज्ड इन द फीसेस. आपका जो लैट्रिन है उसमें जाएगा. देन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शन लाइक नोसिया, वोमिटिंग वगैरह जो है. उसके बाद फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शंस, फेरल न्यूराइटिस,
वर्टिगो मतलब चक्कर आना, साइकोमोटर इनकोऑर्डिनेशन, पैरास्थेशिया मतलब आपका numbness, then hepatotoxicity, it is a rare one, super interaction with candy albicans. Then uses क्या है इसके, it is used in the tinea capititis, ringworm of scalp, आपके ऊपर स्काल के ऊपर अगर कोई वर्म का इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये यूज करिए, टीनिया कैपिटाइटिस, कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस, रिंग वर्म ऑफ स्काल्प। देन टीनिया बार्बी, टीनिया बार्बी मतलब अगर आपके जो आपका दाढ़ी है, दाढ़ी में अगर जो है उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो फंगल इन्फेक्शन ऑफ बियर्ड, फंगल इन्फेक्शन ऑफ बियर्ड, दैट इज अ टीनिया बार्बी, टीनिया, टीनिया पेडिस, टीनिया मानुस, एक्सेट्रा, and treatment of onychomycosis, fungal infection of the nails. So it is used in the onychomycosis, fungal infection of nail. Next one is amphotericin B. Okay, ये ड्रग बहुत ही काफी चर्चा में था अभी म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसके इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। अचानक म्यूकोरमाइकोसिस बढ़ गया तो एम्फोटेरिसिन का जो स्टॉक है वो खत्म हो गया, तो बाद में बना। एक तो क्या होता है कि एम्फोटेरिसिन का ये रेयरली यूज किया जाता है उसका, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने क्या किया कि उनको बनाना बंद कर दिया। एक दो कंपनीज थी वो ही बनाते थे एम्फोटेरिसिन भी, so there used to have only 2 or 3 units which manufactures the amphotericin B formulation. And because of that कोरोना वायरस की वजह से क्या हो गया कि ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस, the physicians and the practitioners, they used irrationally steroid hormones like dexamethasone, betamethasone। इन्होंने क्या किया कि स्टेरॉयडल ड्रग जो है वो इरेशनली यूज किया, बहुत ज्यादा यूज किया, किसमें, आपके कोरोना वायरस के क्राइसिस में। जो भी जिसको भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा उसमें क्या करेंगे, स्टेरॉइड देंगे, स्टेरॉइड दिया दिया दिया, बहुत सारा स्टेरॉइड दिया। अभी स्टेरॉइडल ड्रग जो है दे एज एडवर्स इफेक्ट, दे विल डिप्रेस, दे विल सप्रेस, दे विल डिप्रेस, दे विल सप्रेस योर इम्यूनिटी। कि स्टेरॉइड ड्रग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो गई मतलब उसका मतलब क्या होगा कि आपका इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है। तो क्या हुआ कि कोरोना में डॉक्टर लोगों ने बहुत सारा स्टेरॉइड ड्रग दिया पेशेंट्स को, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। देना ही चाहिए था, उनको लगता था, जैसे आपका बेटामिथाजोन, डेक्सामिथाजोन, देन प्रेडनिसोलन, प्रेडनिसोलन तो बहुत यूज किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका इम्यूनिटी कम हो गया, तो दे विल गेट वल्नरेबल फॉर द इन्फेक्शन, तो वो दे आर बिकमिंग ससेप्टेबल फॉर द इन्फेक्शन। और ये म्यूकर क्या है, म्यूकर इज अ टाइप ऑफ फंगस, म्यूकर का एक फंगस है। और उसकी वजह से क्या हुआ है, जो कोरोना वायरस से रिकवर हुए पेशेंट जिसका इम्यूनिटी कम हो गया है बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट, तो उनको क्या हुआ है, सुपर इन्फेक्शन हो गया है। सुपर इन्फेक्शन क्या था, मैंने बोला था, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग योर इम्यूनिटी गेट लेस, इम्यूनिटी गेट डिक्रीजेस एंड यू आर बिकम ससेप्टेबल फॉर अनदर इन्फेक्शन। तो क्या हुआ है, उसका म्यूकर का इन्फेक्शन हो गया। म्यूकर इज अ टाइप ऑफ फंगस एंड दैट इज नोन एज अ म्यूकर माइकोसिस, ब्लैक फंगस। तो म्यूकर माइकोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, एम्फोटेरिसिन बी। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने लेकिन वो है। This amphotericin B is obtained from Streptomyces nodosus. Streptomyces nodosus. Mechanism of action is similar to nystatin. In addition to that, it will cause oxidative damage to the fungal cell and it has wide antifungal activity. ये भी क्या करेगा, एम्फोटेरिसिन बी जो आपका फंगल सेल है उसके जो सेल वाल है उसके ऊपर जाके ऑक्सीडेटिव डैमेज करेगा एंड वहां पे पोर्स बनाएगा, किसका, सेल वाल के ऊपर, तो अंदर का कंटेंट बाहर आ जाएगा, फंगल सेल मर जाएगा, ठीक है। Mechanism is similar to nystatin and in addition to that it will cause oxidative damage to the fungal cell. Okay, it has a wide antifungal activity. Now adverse drug reaction, so this amphotericin B is a toxic drug, it is a highly toxic antibiotic. In addition to common adverse effect जैसे आपका nausea, vomiting, side drug fever हो गए, इसके बाद में क्या है, it causes profound generalized malaise, chills, flushing and headache। मतलब आपका पूरा बदन दर्द होगा, आपको ठंड बजेगी, गर्मी भी लगेगी, ठीक है, हेडेक। anaphylactic reactions, then peripheral neuritis, then convulsions, then myalgia, vertigo, thrombocytopenia, and hepatic failure. So these are the adverse effects. As it is a highly toxic antibiotic, it has a numerous adverse effects. Now, what are the use of this amphotericin B? So topically, it is used to treat the Candida albicans lesions. For systemic treatment, therapy in the hospital. For systemic therapy, it should be carried out in the hospital. अगर ये ड्रग आपको सिस्टमिकली देना है मतलब इंजेक्शन की वजह से,
So therapy should be carried out in the hospital because it is toxic drug. So it is a treatment of choice in the North American blastomycosis, South American blastomycosis, histoplasmosis, candidiasis, spirotrichosis, and aspergillosis along with the mucor. So a drug of choice in the mucor infection. Mucormycosis जो आपके recently था उसमें भी ये drug of choice है. One is a flucytosine. So it is a fluorinated pyrimidine useful in the systemic infection due to yeast. So it is an anti-metabolite. It is converted into one anti-metabolite known as a 5-fluorouracil. So it is a prodrug. It is a prodrug. Okay, it is converted into 5-fluorouracil by one enzyme known as a fungal thymidase. Fungal thymidase. यहाँ पे लिखना है वो. That will convert into 5-fluorouracil and which will inhibit the DNA synthesis. It will 5-fluorouracil will be phosphorylated into tri-phospho-5-fluorouracil and that will inhibit the DNA synthesis. So that is a flucytosine anti-metabolite antifungal drug. Anti-metabolite antifungal drug. So most of the anti-metabolites they are anti-cancer drug. Then adverse reaction like liver damage, neutropenia, thrombocytopenia, colitis drug used in the cryptococcal meningitis. It is used in the cryptococcal meningitis, systemic enteritis, including urinary tract infection. Now next one is azole antifungals. ठीक है, azole antifungals. तो इसका डिटेल में नहीं लेंगे अपन, शॉर्ट बुक. Azole antifungals they all azole derivative they have common adverse reactions like all azoles are potentially embryotoxic. ठीक है, embryo जो होता है आपका न्यूबॉर्न का उसको toxicity and that's why they are also teratogenicity. All azole are potentially embryotoxic, teratogenic and should be avoided during the pregnancy and lactation. उसको use नहीं करना है. They are also potent inhibitor of hepatic microsomal enzyme inhibitors icon. Antifungal activity कैसे? What is mechanism of action? They act by inhibiting the synthesis of ergosterol. They act by inhibiting the synthesis of ergosterol in the fungal cell में. Fungal cell में जो ergosterol जो होता है algosterol, ठीक है? Ergosterol. It is one of the important component of cell wall of fungus cell wall. ठीक है? तो वो synthesis होता है. Ergosterol is synthesized from स्क्वेलिन. स्क्वेलिन जो होता है स्क्वेलिन से अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस होता है. स्क्वेलिन से आपका स्क्वेलिन इपोक्साइड बनेगा और उसके बाद में अर्गोस्टेरॉल बनेगा, उसके बाद में कोलेस्टेरॉल बनेगा. ठीक है, कोलेस्टेरॉल क्या है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल. तो अर्गोस्टेरॉल का इनहिबिट करेंगे. एंटीफंगल एक्टिविटी क्या है? दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द synthesis of ergosterol in the fungal cell, thereby disturbing the cell membrane. Broad spectrum antifungal antibacterial agent effective against the dermatophytes, microsporum, cryptococcus, blastomycosis, and nocardia and candidiasis. Usual drug like first one is a cotrimazole. So it is not used systemically. It is not used systemically, or it is not used in the systemic infection. It is only topical drug cotrimazole. So it is used topically as a 1% cream as a vaginal tablet to treat the candidiasis. Next one is a miconazole. So it is a imidazole derivative. Again, it is a broad spectrum antifungal metabolized in the liver and used for systemic fungal, not systemic topical fungal infection. Next one is a ketoconazole. So ketoconazole, it is a water soluble azole, only water soluble imidazole derivative. Similar to miconazole, ketoconazole inhibits the several steps in the synthesis of hormone and steroids. जो भी सेल मेम्ब्रेन का स्टेरॉइड होता है उसको इनहिबिट करेगा. बारे में बाद में देख लेंगे अपन. ड्रग रिएक्शन क्या है? एलर्जिक रिएक्शन, गायनेकोमास्टिया. देखो यहाँ पे गोनेडल स्टेरॉइड जो है उसको इनहिबिट करता है. मतलब जो बोला है स्क्वेलिन से आपका अर्गोस्टेरॉल बनेगा, अर्गोस्टेरॉल से कोलेस्टेरॉल बनेगा और कोलेस्टेरॉल से बाद में सेक्स स्टेरॉइड बनते हैं. ठीक है ना, सेक्स स्टेरॉइड तो फंगस में नहीं बनते, सेक्स स्टेरॉइड तो आपने ह्यूमस में बनते हैं. ठीक है, लेकिन क्या आता है कि ये जो केटोकोनाजोल है ये फंगल का स्टेरॉइड तो इनहिबिट करेगा, तो फंगल का तो डेड हो जाएगा, फंगस का डेड हो जाएगा. ये ह्यूमस में भी स्टेरॉइडल इनहिबिट करता है, स्टेरॉइड सिंथेसिस. तो उसकी वजह से गायनेकोमास्टिया, आपकी हेपेटिक नेक्रोसिस. इट इज आल्सो यूज्ड एज एंटी फंगल एजेंट इन द कुशिंग सिंड्रोम. 10 मिनट का बाकी रह गया है अपना. ठीक है, सो ketoconazole as it inhibits the several steps in the synthesis of steroid for the cell wall of fungus as well as steroidal hormone in the humans. So allergic reactions, gynecomastia, acute hepatic necrosis, the side effects or the adverse effect. So it is used as an antifungal agent in the Cushing syndrome, then familial testotoxicosis,
prostate cancer. Next one is itraconazole. Itraconazole is a broad spectrum antifungal drug. Remember, broad spectrum antifungal drug. कौन है? Itraconazole. Related to ketoconazole, mostly metabolized by liver and its hydroxy metabolite is active. Hydroxy itraconazole is also fluconazole. इसमें इतना शॉर्ट इन्फॉर्मेशन क्यों दिया है मैंने? क्योंकि बाकी का इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं है आपके लिए, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, भी नहीं है उतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल आप यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम एंटीफंगल ड्रग्स, एक या दो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन आया था निस्टेटिन के मैकेनिज्म एक्शन है। सो निस्टेटिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सो इट विल क्रिएट ए pore in the cell wall of and it will drain the content and so cell will die. So that उसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट वन इज फ्लूकोनाजोल। सो फ्लूकोनाजोल इज अ ट्रायाजोल डेरिवेटिव, इज इफेक्टिव ओरली। तो यहाँ पे देखो फ्लूकोनाजोल कीटोकोनाजोल, ये दो जो ड्रग है कीटोकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल, ये ओरली देते हैं, बाकी इट्राकोनाजोल भी ओरली देते हैं, बाकी माइकोनाजोल, लुलिकोनाजोल, कोट्रामेजोल, दे ऑल these are the topically active. Fluconazole is again orally active. Okay, so it is well absorbed orally, effective orally as well as IV. Then it will reach to CSF also, and it is used in the meningitis caused by cryptococcal and candidiasis. Meningitis में use कर। Miscellaneous drug है terbinafine. Terbinafine is a miscellaneous one. Fungicide agent act by inhibiting the enzyme squalene epoxide and squalene epoxide को inhibit करेगा and biosynthesis of cell wall. Effective orally as well as topically. Capsopungin belongs to new group of antifungal called as, ये हमने देखा था Echinocandin group है उसका capsopungin. It will again act on a cell membrane to block the synthesis of glycan, which is the important component of cell wall. इसके बारे में बोलता हूँ आपको। Drug reaction hypercalcemia, रैश, फीवर, फ्लेबाइटिस, एम्ब्रियोटॉक्सिटी। तो एंटी फंगल ड्रग्स यहाँ पे समराइज किया है एक डायग्राम। एंटी फंगल ड्रग यहाँ पे देखो फर्स्ट कैटेगरी है शिनोकैंडिडियंस। एग्जांपल क्या है आपके? कैप्सोफंगिन है, अनिडुला फंगिन है और मिका फंगिन है। ठीक, सो फंगिन जो है, फंगिन आर इशोनोकैंडियंस such as a capsopungin, then anadula fungin and micafungin. So they used to inhibit the one enzyme, that is nothing but the enzyme required to synthesize the beta glucan called, okay, ये जो beta glucan होता है ये फंगल सेल है, ये beta glucan सेल वॉल के लिए इंपॉर्टेंट होता है फंगल सेल। इनहिबिट कौन करेंगे? ये कैटेगरी ड्रग लाइक कैप्सोफंगिन, anadfungin and micafungin. Sometimes they are also called penicillin antifungals. Sometimes they are also called as penicillin antifungals because they also inhibit the, देखो जहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बीटा ग्लाइक ये जो होता है ना पग में, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या करते हैं? सेल वाल इन्वेड करते हैं, किसको बाइंड करके? तो वैसे ही उसी तरीके से ये एक्ट होता है। कौन? ये ड्रग्स कैप्सोफंगिन। तो उसके लिए कभी कभी उसको पेनिसिलिन्स ऑफ एंटीफंगल्स भी बोलते हैं। पेनिसिलिन्स क्या करते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होता है ग्राम पॉजिटिव में उसको इनहिबिट करते हैं ना, तो ये भी ग्लूकान को इनहिबिट करते हैं। सो दैट्स व्हाई समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज पेनिसिलिन्स ऑफ एंटीफंगल। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलीन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, पॉलीन एंटीबायोटिक लाइक सच एज एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टेटिन, दे बाइंड्स to the ergosterol, weakens the membrane, causes the pore formation, and pore, once there is a formation of pore in the cell membrane of fungus, there will be leakage of potassium and sodium, then fungal cell will die. Okay, also confirms the mammalian toxicity. मैंने बोला है कभी mammalian cell को भी toxicity करेगा amphotericin B. Azole antifungals like fluconazole, ketoconazole, itraconazole inhibit the enzymes. This is says that synthesize the ergosterol, which is an important component of cell wall. Flucytosine is nothing but it is a anti-metabolite. It is converted to 5-fluorouracil and to inhibit the DNA synthesis, and it is a pyrimidine analog. ये है आपका फंगस। ठीक है, ये फंगस है। तो ये एक फंगस का एक सेल है, मान लीजिए इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल, ठीक, वो बनता है आपका सेल वॉल किससे बनता है? सेल वॉल बनता है आपका 1,3 बीटा ग्लूकान। ठीक है, बीटा ग्लूकान। ठीक है,
तो उसको इनहिबिट कौन करेंगे? जो फंगिन्स है, जितने भी फंगिन्स है वो इनहिबिट करेंगे उसको। इशोनोकैंडियंस, कैंडियंस, इशोनोकैंडियंस जो भी फंगिन्स है वो इनहिबिट करेंगे। नाउ नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? स्क्रीन। पहले स्क्वेलिन जो होता है, इपोक्साइड स्क्वेलिन, उससे बनता है लेनोस्टेरॉल, लेनोस्टेरॉल से बनता है अर्गोस्टेरॉल, उससे बनता है आपका सेल वॉल, कोलेस्ट्रॉल बाद में सेल वॉल। तो स्क्वेलिन इज कन्वर्टेड टू लेनोस्टेरॉल बाय स्कोलिन इपोक्सिडेज, इस नाम का एंजाइम रहता है, उसको इनहिबिट कौन करेगा? टर्बिनाफिन एंड निप्टिपाइन, टर्बिनाफिन एंड निप्टिपाइन। लेनोस्टेरॉल का कन्वर्जन होता है अर्गोस्टेरॉल में। इट इज इनहिबिटेड बाय azole antibiotics like fluconazole, itraconazole. Then flucytosine क्या है? So it is a anti metabolite, antifungal drug. So it will be converted into 5-fluorouracil in the cell membrane, and that will prevent the synthesis of DNA. Then griseopulin will act on a mitosis and meiosis. तो उसको सेल डिवीजन, एक्टिवली सेल जो डिवाइड हो रहा है फंगल सेल, उसको इनहिबिट करेगा ग्रिसेओपुलिन। जस्ट today's lecture. Okay? So now with the session, and we will take tomorrow again anti-tubercular drug used in the treatment of tuberculosis. So today we have finished.